And welcome, friends. So, welcome in one more episode, 22nd episode of this PYQ session. So, with today's chapter, we are going to complete 11th standard according to NCRT index, isn't it? So, this is the 22nd chapter, that is, last chapter from 11th NCRT. Okay, so this is the chapter of chemical coordination. Okay, so hormonal discussions are there. Now, today also uh, I'm facing the problem with the unstable net, and then second thing, the major problem was that power failure, power cut due to the monsoon rains. In fact, monsoon rains are welcome because session means the season right now, it is monsoon. So how we can deny that monsoon rains? Now power cut, it is a very common problem. Okay, so let it be. Now we are communicating through this recording session. I hope you will like it. I will try to explain each and every question to the fuller depth. Okay, and if in spite of these things, if some doubts left, then on the scrolling bar right above my head in the next screen, there is my mobile number. WhatsApp number is given. Still I can repeat it here also. It is 8552065365. So you can tell me, or you can ask me whatever your queries if they are there. Okay, I will be happy to solve those problems. Okay, so without wasting any more time on this preface, let us start to the first question, that is PYQ session. So let us start from the NEET. Okay, so here we come. Now first question, temporary endocrine gland in the human body is, so which is the temporary? Corpus caardiacum, corpus luteum, corpus allatum, or pineal gland? So answer is quite obvious, it is corpus luteum. Okay, so this is the structure which is formed. How it is formed? See, corpus luteum, it is formed from that mature Graafian follicle after ovulation, isn't it? Now, rest of the structure, see here, pineal gland, it secretes melatonin and it is a permanent structure. Now, the part other options A and C, if you look at it, corpus caardiacum and corpus allatum. Now, both of these structure, they are related with the insects. Okay, सो ये दोनों जो है, ये दोनों के दोनों इंसेक्ट्स में, कॉर्पस एलाटम और कॉर्पस कार्डियकम. बट यहाँ पर जो पूछा है वो ह्यूमन बॉडी के बारे में पूछा है. सो वी हैव टू रिजेक्ट दिस ऑप्शन ए एंड सी. Pineal gland, it is a permanent structure, isn't it? Present in the epithalamus of the brain. So the right answer as a temporary. क्यों temporary? Because it is there for minimum 14 days or at the most few months till during pregnancy. Okay, so it is the temporary structure. Now move on to next question. It is question number 2. What it is? GnRH, gonadotropin releasing hormone, isn't it? A hypothalamic hormone needed in reproduction acts on. So GnRH ये किस पर एक्ट करता है, ये ऐसा सवाल है 2017 से. Options are anterior pituitary gland, stimulate secretion of LH and FSH. Second option, posterior pituitary gland and stimulate secretion of oxytocin and FSH. Third option है posterior pituitary, stimulate secretion of LH and relaxin. और last option है anterior pituitary gland and stimulate secretion of LH and oxytocin. Now GnRH ये gonadotropin releasing हार्मोन, इसे हम GTH भी बोल सकते हैं, ठीक है, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन. सो इट इज हाइपोथैलेमिक, मतलब GTH का सिक्रेशन प्रमोट करने वाला हाइपोथैलेमस का GnRH. GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, और इसके स्टिमुलेशन के इन्फ्लुएंस में एंटीरियर पिट्यूटरी GTH सिक्रेट करता है. सो इट इज एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड needed in reproduction. So this GnRH acts on which part, anterior or posterior? So posterior is not possible. क्यों? तो posterior जो है वो सिर्फ दो हार्मोन रिलीज करता है, ऑक्सीटोसिन और ADH. तो posterior का तो कोई चांस नहीं है. तो बचे ऑप्शन 2 A और D, anterior pituitary gland, stimulate secretion of LH and FSH. This is fine. So A is the answer. लास्ट ऑप्शन में गलत क्या है? ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का है, तो इसलिए उसका ये डी आंसर तो नहीं हो सकता, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3,
hyper secretion of growth hormone in adult does not cause further increase in height. Now see here, growth हार्मोन का अगर एक्सेस सिक्रेशन हो जाता है एडल्ट में, तब जाकर के हाइट नहीं बढ़ती है. तो व्हाट इज द रीजन? ऑप्शंस आर एपिफाइजियल प्लेट क्लोज आफ्टर एडोलेसेंस, bones lose their sensitivity to growth hormone in adult, muscle fiber do not grow in size after birth, growth hormone become inactive in adult. तो इसका रीजन क्या है? अगर हाइपर सिक्रेशन होने के बावजूद भी एडल्ट कंडीशन, एडल्ट स्टेज में आने के बाद जो है हाइट नहीं बढ़ती, मतलब यही ग्रोथ हार्मोन अगर हाइपर सिक्रेशन चाइल्डहुड में होता है तो हाइट जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है. लेकिन एडोलेसेंस क्रॉस हो गया, एडल्ट स्टेज में आ गए, तब अगर ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस सिक्रेशन हो रहा है तब हाइट नहीं बढ़ती है. तो ऐसा क्यों? तो इसका सही जवाब है एपिफाइजियल प्लेट्स क्लोज आफ्टर एडोलेसेंस. तो ये जो बोन, हम लॉन्ग बोन जब भी हम ड्रॉ करते हैं, वी ड्रॉ इट लाइक दिस, इजंट इट? तो इस डायग्राम में ये जो है, इसे जो पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं? दोनों तरफ का ये जो स्वलन एंड है इसे क्या बोलते हैं? एपीफाइसिस. ठीक है. और ये जो अंदर का शाफ्ट है इसे बोलते हैं हम डायफाइसिस. तो एपीफाइसिस पे जितना डिपोजिशन होता रहेगा, क्या होगा? इस ये बोन की जो लेंथ है वो बढ़ती जाएगी. ठीक है, पूरी तरीके से. लेकिन अगर यहाँ पर जो डिपोजिशन है वही अगर बंद हो जाता है, ठीक है, तो फिर चाहे ग्रोथ हार्मोन रहे या ना रहे, उसका जो सिग्नल लेने के लिए अगर प्लेट ही क्लोज हो गई, एपीफाइजियल प्लेट अगर वो अगर जाकर के क्लोज हो जाती है, देन देयर इज नो चांस दैट इवन प्रेजेंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन कैन डू समथिंग. एंड दैट इज व्हाई आफ्टर एडोलेसेंस, दैट इज इन द एडल्ट स्टेज, एडोलेसेंस के बाद में यानी एडल्ट स्टेज में एपीफाइजियल प्लेट बंद हो जाते हैं, ऐसा हम बोलते हैं. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. Now what about the rest of the option? Bones lose their sensitivity to growth hormone. ऐसे तो नहीं बोल सकते they are sensitive to growth hormone, but point is that there is no chance for growth. तीसरा ऑप्शन, मसल फाइबर डू नॉट ग्रो इन साइज. भी मसल फाइबर का हाइट के बढ़ने में तो कोई ऐसा रोल नहीं बोल सकते. देन ग्रोथ हार्मोन बिकम इनएक्टिव, ये भी चीज़ कोई नहीं है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन एक्सेस में सीक्रेट हो रहा है और फिर उसका जवाब हम वो इनएक्टिव ऐसे थोड़ी ना बोल सकते. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following pair of hormone are not antagonistic? एंटागोनिस्टिक नहीं है ये पूछा है. ठीक है, एंटागोनिस्टिक माने कैसा? हैविंग अपोजिट इफेक्ट्स टू ईच अदर. तो एक ऐसा पेयर हमें ढूंढना है कि जिसका इफेक्ट एक दूसरे से अपोजिट नहीं है. तो ये पहला पेयर है पैराथार्मोन कैल्सिटोनिन. अब ये कैल्सिटोनिन माने थायरोकैल्सिटोनिन फ्रॉम थायराइड. थायराइड के जो दो हार्मोन, एक तो थायरोक्सिन है ट्राइआयोडो या टेट्राआयोडो, और दूसरा जो है वो थायरोकैल्सिटोनिन. ठीक है, और दूसरा ये पैराथायरॉइड का पैराथार्मोन, राइट. तो इनका जो है वो एंटागोनिस्टिक ऑप्शन है. दे रेगुलेट कैल्शियम लेवल. तो ये क्या करते हैं? कैल्शियम लेवल मैनेज करने के लिए इनका जो काम है वो एक दूसरे का उल्टा काम है. मतलब अगर हम किसकी मतलब शुरुआत करते हैं, चलो पैराथार्मोन से, तो वो क्या करता है? ब्लड का कैल्शियम इंक्रीज करता है, और कैल्सिटोनिन या थायरोकैल्सिटोनिन जो है वो ब्लड का कैल्शियम रिड्यूस करता है. ठीक है, अब ब्लड का कैल्शियम अगर पैराथार्मोन को इंक्रीज करना है तो वो कैसा करेगा? हार्मोन में का एब्जॉर्ब कर बोन में का जो कैल्शियम है वो एब्जॉर्ब कर लेगा. इन दिस वे इट कैन इंक्रीज ब्लड कैल्शियम बाय डिसोल्यूशन ऑफ द बोन कैल्शियम. But whereas calcitonin, it reduces blood calcium level and it asks bone to absorb more and more calcium. Okay, so this is the antagonistic perfect pair. Second option is insulin and glucagon. अब अगर हम second option के बारे में देखते हैं, second option जो है इंसुलिन ग्लूकागॉन. तो इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज जो है वो कम करता है और ग्लूकागॉन जो इंक्रीज करता है. तो ये भी अपोजिट वाली पेयर हो गई. थर्ड ऑप्शन अगर हम देखते हैं, अल्डोस्टेरॉन एंड एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर. आई थिंक एक्सक्रीशन का जब से PYQ हो रहा है तब से मैं आपको ये चीज़ें बार बार बता रहा हूँ. अल्डोस्टेरॉन की टीम में कौन कौन है? रेनिन है, एंजियोटेंसिन है, अल्डोस्टेरॉन है और ADHP है. तो ये चारों मिला करके ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाले हैं. वेयरएज एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर ये एक है, ANF, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर सिक्रेटेड बाय एट्रिया ऑफ द हार्ट. तो ये जो है वो ब्लड प्रेशर कम करने वाला है, क्योंकि ये सोडियम और वाटर दोनों का एक्सक्रीशन करवा देता है. नाइट्रियम दैट इज सोडियम, उसको यूरिन में फेंक देने वाला अलोंग विथ वाटर, ANF. तो ये भी एंटागोनिस्टिक पेयर हो गई. अब बचा लास्ट वाला, रिलैक्सिन और इनिबिन. तो इनका काम क्या है? नाउ रिलैक्सिन इट इज सिक्रेटेड बाय ओवरी एंड प्लेसेंटा, और इसका फंक्शन जो है वो क्या है? इट रिलैक्सेस द लिगामेंट in the pelvis. Okay, and in this way to widen
then the opening of the cervix it can act, relaxin का काम, which is very much important during the delivery. Okay, that is parturition process. अब दूसरा जो है inhibin it is secreted by the granulosa, obviously in the female, granulosa inside that ovary. Okay, so certainly cell male में यही inhibin secrete कर सकते हैं. Okay, both of them are means they responds to the FSH, follicle stimulating hormone. Fine. तो ये दोनों का काम जो है वो बिल्कुल भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, रिलैक्सिन और इनहिबिन. ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि नॉट एंटागोनिस्टिक. ठीक है, तो ये लग सकता है इनके नाम पढ़ करके कि एक रिलैक्स कर रहा है और एक दूसरा इनहिबिट कर रहा है. ऐसा है क्या? कुछ नहीं. ये इनहिबिट किस चीज को करता है? इट इज निगेटिव फीडबैक कंट्रोल ऑफ द पिट्यूटरी एफएसएच सिक्रेशन, इजंट इट? पिट्यूटरी का जो एफएसएच का सिक्रेशन है उसको निगेटिव फीडबैक दे रहा है, इसीलिए इसे इनहिबिन कहा जाता है, इनहिबिट कर रहा है. रिलैक्सिन जो है वो पेल्विस के जो लिगामेंट है उनको रिलैक्स करने का काम करता है. तो ये इस तरीके से दोनों का काम एक दूसरे के आड़े नहीं आता या फिर एक दूसरे को अपोज नहीं करते. सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज लास्ट वन. Okay, here it is the right answer. Question number 5. Next, changes in GnRH pulse frequency in female is controlled by circulating level of. देखो अभी क्वेश्चन कैसा है, GnRH के लेवल में, फ्रीक्वेंसी में अगर चेंजेस आ रहे तो इट इज कंट्रोल्ड बाय सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ. तो ये क्या कैसे कंट्रोल हो सकता है? चेंजेस इन GnRH पल्स फ्रीक्वेंसी. अब ये वर्डिंग समझनी होगी क्वेश्चन की. GnRH माने गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस, उसका कॉन्सेंट्रेशन अगर बदल रहा है, इट इज कंट्रोल्ड बाय, तो इसे कौन कंट्रोल करता है? ओके, ऑप्शंस आर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. सेकंड ऑप्शन एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन. थर्ड ऑप्शन प्रोजेस्टेरॉन ओनली. फोर्थ ऑप्शन प्रोजेस्टेरॉन एंड इनहिबिन. नाउ जस्ट एज आई टोल्ड यू, GnRH पल्स फ्रीक्वेंसी अगर फीमेल में जो चेंज होती रहती है तो उसे कौन कंट्रोल कर रहा है? So it is the negative feedback of the estrogen and progesterone. Okay, अब ये कैसे होता है? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की अगर हम बात करते हैं तो फॉलिकल का डेवलपमेंट का काम किसका है? एफएसएच और एलएच का. देखो ये चीज़ आपको अच्छे से समझनी होगी. GnRH पहले क्या करता है? वो निकलता है हाइपोथैलेमस से. ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा अपन फ्लो चार्ट बना सकते हैं. GnRH acts on what? It's act on anterior pituitary to release what? FSH and ELH, जिनको हम GTH भी बोलते हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ठीक है, नाउ FSH LH एंटीरियर पिट्यूटरी ने रिलीज कर दी. अब FSH जो है, FSH के इन्फ्लुएंस में क्या हो रहा है? जो फॉलिकल्स है, आर्म वाले फॉलिकल्स, दे कन्वर्ट इनटू मैच्योर फॉलिकल. ओके, और मैच्योर फॉलिकल का आगे चल के क्या हो जाता है? ओव्यूलेशन होता है. अब ओव्यूलेशन के बाद ये मैच्योर फॉलिकल किस में कन्वर्ट होता है? कॉर्पस लूटेयम में. एंड दिस कॉर्पस लूटेयम रिलीजेस प्रोजेस्टेरॉन. ठीक है, अब ये चीज समझनी होगी. देखो ये पूरा सब कब हो रहा है? जब GnRH सीक्रेट हो रहा है. ठीक है, GnRH आता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, तभी FSH सीक्रेट होगा, तभी जो फॉलिकल डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेजेस में तब वो मैच्योर होंगे, ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, फिर उसका ओव्यूलेशन होगा. फिर ओव्यूलेशन के बाद में जो एम्प्टी खाली पड़ा हुआ फॉलिकल है उसे हम कॉर्पस लूटेम बोलते हैं, जो आगे चल के प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है. अब अगर इनकी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, किसकी? एक तो ये जो फॉलिकल के सेल से ग्रैन्युलोसा सेल, ये एस्ट्रोजन सीक्रेट करते हैं. ठीक है, और दूसरा ये प्रोजेस्टेरॉन. तो इनका जो लेवल है, ये लेवल GnRH पे कंट्रोल रख रहा है. दिस इज व्हाट यू शुड नो. ओके, सो अगर फॉलिकल सपोज कम है, लेस, तो एस्ट्रोजन कम रहेंगे. अब एस्ट्रोजन अगर कम रहेगा तो निगेटिव फीडबैक ना होने के वजह से GnRH बढ़ जाएगा. ठीक है, अब अगर प्रोजेस्टेरॉन नहीं है तो भी GnRH बढ़ जाएगा. ठीक है, मतलब ये दोनों अगर है तो GnRH नहीं रहेगा, ये दोनों अगर नहीं है तो ही GnRH आएगा. So this is how the level of GnRH is managed by this estrogen and progesterone. I think after this much of explanation there is no need to explain rest of the things. इनहिबिन अभी हमने देखा था, क्या था इनहिबिन के बारे में. इनहिबिन जो है, जो अभी हमने डिस्कस किया था, रिलैक्सिन और इनहिबिन वाला क्वेश्चन.
तो वहाँ पर हमने इन चीज़ों का भी डिस्कस किया था, सो नीड नॉट टू रिपीट दिस थिंग्स वंस अगेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट इन्वॉल्व इन शुगर मेटाबॉलिज्म। तो शुगर मेटाबॉलिज्म में कौन है जो इन्वॉल्व नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो यहाँ पर अगर ऑप्शन देखते हैं, अल्डोस्टेरॉन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, कॉर्टिजोल। नाउ ये चीज़ें समझनी होगी हमें अच्छे से। अल्डोस्टेरॉन क्या करता है, अभी मैंने आपको बोला था अल्डोस्टेरॉन का एग्जैक्ट फंक्शन क्या है, अल्डोस्टेरॉन क्या क्या कर सकता है। अब वो ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाला है, ठीक है, सोडियम को एब्जॉर्ब, जो सोडियम को जो वो यूरिन में जाने नहीं देता है, पानी को भी रोक देता है, तो इसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर दोनों बढ़ा देता है। तो इसका जो है वो डायरेक्ट शुगर मेटाबॉलिज्म से किधर भी रिलेशन या फिर कांटेक्ट नहीं होता है, या फिर उसको कोई इन्फ्लुएंस नहीं करता है। इंसुलिन और ग्लूकागॉन, अभी हमने एक क्वेश्चन में देखा था कि एंटागोनिस्टिक पेयर है। इंसुलिन जो है ब्लड ग्लूकोज कम करता है, ग्लूकागॉन मतलब ऐसा कर देते हैं, और ग्लूकागॉन जो है वो ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज कर देता है। तो ये दोनों तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है। अब जो कॉर्टिजोन है, कॉर्टिजोन क्या है, एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन है, इजंट इट। सो मेजर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सो ये तो ग्लूकोज लेवल मेंटेन करने वाले हैं। Okay, so it is the major glucocorticoid, cortisol, which easily convert that protein to the carbohydrate, okay, or that glucose. So by this is called as gluconeogenesis. तो ये cortisone या फिर जो glucocorticoid है, ये क्या करते हैं, gluconeogenesis प्रमोट करते हैं, and in this way they also play some role in sugar metabolism. So यहाँ पर फिर इसका जवाब कॉर्टिजोल भी नहीं होगा, हमें तो वो चाहिए कि जो क्या करता है, कहीं पर भी शुगर मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व नहीं है। सो द राइट आंसर इज दिस अल्डोस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन दो सिंथेसाइज्ड एल्सवियर इज स्टोर्ड एंड रिलीज्ड बाय द मास्टर ग्लैंड। अब ये क्वेश्चन काफी इजी है, जिन्होंने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा है उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन दो सिंथेसाइज एल्सवियर, मतलब चाहे तैयार कहीं पर भी हो, लेकिन स्टोर और रिलीज करने का काम ये मास्टर ग्लैंड करता है। मास्टर ग्लैंड माने पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है। तो ये काम, अब ये जो है चीज़ ऑक्सीटोसिन और एडीएच दोनों के लिए, क्योंकि वो बनते कहाँ पर है, हाइपोथैलेमस में, और रिलीज करने का काम पोस्टीरियर पिट्यूटरी करता है। तो ल्यूटेनाइजिंग नहीं हो सकता, प्रोलैक्टिन नहीं, मेलेनोसाइट नहीं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन हो सकता है। तो एडीएच और ऑक्सीटोसिन दोनों के लिए ये क्वेश्चन फिट बैठता है, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ एडीएच एंटी डायूरेटिक है। एडीएच का दूसरा भी एक नाम है, शायद आपको पता होगा, दैट इज वैसोप्रेसिन। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द हार्मोन विद इट्स करेक्ट मैचिंग ऑफ सोर्स एंड फंक्शन। तो अभी हमें करेक्ट मैचिंग पेयर ढूंढनी है। ऑक्सीटोसिन, पहले इसमें क्या क्या दिया है, सोर्स एंड फंक्शन। तो हार्मोन है, उसका सोर्स है और फंक्शन है, तो एक एक करके हमें करेक्ट वाला ढूंढना है। ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड, अब ये सोचना होगा कि मैमरी ग्लैंड की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल है क्या। सेकेंड ऑप्शन है मेलाटोनिन प्रोड्यूस बाय पीनियल ग्लैंड, रेगुलेट द नॉर्मल रिदम ऑफ द स्लीप वेक साइकिल, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। मेलानिन जो है वो पीनियल ग्लैंड बनाता है, पीनियल ग्लैंड एपिथैलेमस में है, विच इज द पार्ट ऑफ डायंसेफिलॉन, रूफ ऑफ द डायंसेफिलॉन। एंड स्लीप वेक साइकिल, इसको हम का सर्काडियन रिदम्स भी बोलते हैं, डेली स्लीप वेक जो साइकिल होता है, तो उसको रेगुलेट करने वाला ये मेलाटोनिन। तो ये तो पूरा ठीक से मैच हो रहा है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस ल्यूटेम, स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ये जो चीज़ है यहाँ तक तो ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस ल्यूटेम, लेकिन आगे जो कह रहा है कि फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ये काम प्रोजेस्टेरॉन का नहीं, ये जो है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का जो रेगुलेशन है वो तो काम एस्ट्रोजन का होता है, इसलिए ये तो जवाब नहीं हो सकता है। चौथे में देखते हैं एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, वेंट्रिकुलर वॉल, वेंट्रिकुलर नहीं एट्रियल वॉल से सिक्रेट होता है, तो ये भी चीज़ नहीं हो सकती है। पहले ऑप्शन में ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यहाँ तक तो ठीक है, और लास्ट जो था ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ मेमोरी, ये गलत है, ठीक है। तो सही जवाब इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बनता है फिर, इट इज सेकेंड वन, दैट इज मेलाटोनिन प्रोड्यूस्ड बाय दिस पीनियल ग्लैंड। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 9, फाइट और फ्लाइट रिएक्शन कॉज एक्टिवेशन ऑफ। अब ये फाइट और फ्लाइट जो है इमरजेंसी वाले हार्मोन है, तो इनके बारे में क्वेश्चन है कि ये किस चीज़ का एक्टिवेशन करते हैं, पैराथायरॉयड ग्लैंड का, किडनी का, एड्रिनल मेडुला, पैनक्रियाज।
causes activation of fight or flight reaction causes activation, ऐसा है। फाइट और फ्लाइट हार्मोन नहीं बल्कि फाइट और फ्लाइट रिएक्शन किस चीज को एक्टिवेट करते हैं। बेसिकली फाइट और फ्लाइट रिएक्शन जो हमें इमरजेंसी में डाल देते हैं वो एक्टिवेट करते हैं इसे एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन को, ठीक है। तो ये किसके हार्मोन से, ये हार्मोन है एड्रिनल मेडुला के, राइट। तो पैराथायरॉइड का ऑप्शन नहीं बनता है यहाँ पर, दूसरा किडनी का भी नहीं बनता है, तीसरा है एड्रिनल मेडुला। यस, दिस इज द राइट आंसर, लीडिंग टू इंक्रीज्ड सिक्रेशन ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। कैटेकोलामाइन का केमिकल नेचर है, हमने कल परसों किसी प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस भी किया था। ओके, पैनक्रियाज लीडिंग टू रिडक्शन, ये भी नहीं हो सकता है, वो तो अगर इंसुलिन के तरफ जा रहा है, फाइट और फ्लाइट का थोड़ी ना है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू द एंडोक्राइन सिस्टम। अब एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी, सॉरी माय करेक्शन, ऑर्गन्स इन द बॉडी लाइक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हार्ट, किडनी, लीवर डू नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मोन। ये सही है क्या? क्या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के हार्मोन नहीं है? तो ये तो गलत है। हार्ट भी ये बना देता है, किडनी भी रेनिन बनाता है, लीवर के बारे में ठीक है बोला जा सकता था, तो पहला तो नहीं हो सकता है, गलत है। सेकेंड, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल प्रोड्यूस बाय द बॉडी इन ट्रेस अमाउंट दैट एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर आर नोन एज हार्मोन। तो ये चीज सही मालूम हो रही, तो इसको रख देते बाजू में। तीसरा, रिलीजिंग एंड इनिबिटरी हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। रिलीजिंग एंड इनिबिटरी हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय पिट्यूटरी, इज इट सो? नो, ये रिलीजिंग और इनिबिटरी कौन बनाता है हाइपोथैलेमस एंड नॉट पिट्यूटरी, तो ये भी गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन का एडिनोहाइपोफाइसिस इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस, दीज आर द नेम्स ऑफ, यस, किस चीज के नाम है ये, किस चीज के नाम है? ये नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड के, जिसे हम एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, ठीक है। तो एडिनोहाइपोफाइसिस माने एंटीरियर पिट्यूटरी और न्यूरोहाइपोफाइसिस माने पोस्टीरियर। तो एंटीरियर माने एडिनो, पोस्टीरियर मीन इसका मतलब होगा न्यूरोहाइपोफाइसिस। सो एडिनोहाइपोफाइसिस इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। तो ये हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट रेगुलेशन में है। ओके, तो यहाँ पर दो के बारे में अभी हमें चुनाव करना पड़ेगा, ठीक है। एडिनोहाइपोफाइसिस इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, तो सब चीज सही लग रही है, लेकिन लास्ट में एक वर्ड जो है हमें ठीक से इसे समझना होगा। जब हम कुछ चीजें बहुत ज्यादा गड़बड़ करने लगते हैं, क्या वो न्यूरल रेगुलेशन में है? रेगुलेशन में है ये ठीक है, लेकिन क्या वो न्यूरल रेगुलेशन है? नहीं, वो है केमिकल रेगुलेशन या फिर हार्मोनल रेगुलेशन। क्योंकि ब्रेन जो है वो कोई न्यूरल इम्पल्स से थोड़ी बोलता है पिट्यूटरी को हार्मोन सिक्रेट करने को या उसका सिक्रेशन स्टॉप करने को, बजाय उसके वो क्या करता है, कुछ रिलीजिंग फैक्टर या फिर इनिबिटिंग फैक्टर सिक्रेट करता है, तो हम उसे न्यूरल रेगुलेशन नहीं बोल सकते। इसके वजह से ये भी गलत हो जाता है और बचता है सिर्फ सेकेंड। हार्मोन क्या होते हैं? दीज आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी इन ट्रेस अमाउंट दैट एक्ट एज इंटरसेल्युलर मैसेंजर आर नोन एज हार्मोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेग्नेंट फीमेल डिलीवर बेबी हु सफर्स फ्रॉम स्टंटेड ग्रोथ। ठीक है, प्रेग्नेंट फीमेल थी, उसकी डिलीवरी हो गई, उसकी बेबी जो है सफर फ्रॉम स्टंटेड ग्रोथ, ठीक है, माने उसकी ग्रोथ रुकी हुई है। मेंटल रिटार्डेशन भी है, लो इंटेलिजेंस, मेंटल रिटार्डेशन का मतलब लो IQ एंड एबनॉर्मल स्किन। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ, तो ये सब है किस चीज का परिणाम है? लो सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अब स्टंटेड ग्रोथ के लिए शायद ये कहा जा सकता था, लेकिन वो भी उतना ठीक नहीं है, क्योंकि आगे काफ़ी सारी चीज़ें दी है जैसे लो IQ वगैरह, एबनॉर्मल स्किन, तो ये खाली ग्रोथ हार्मोन के बस की बात नहीं है। कैंसर ऑफ थायराइड, ये थोड़ा एब्सर्ड ऑप्शन है। ओवर सिक्रेशन ऑफ पार्स डिस्टालिस, पार्स डिस्टालिस, ट्यूबरलिस, पार्स इंटरमीडिया, अगेन दीज आर द पार्ट्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, तो ये भी नहीं है। डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन डाइट, दिस इज द राइट आंसर। अब ये आयोडीन अगर ठीक ठाक रहता तो थायरोक्सिन ठीक ठाक बनता, और थायरोक्सिन के ये पूरे फंक्शन है, ग्रोथ को ठीक से प्रमोट करना, ब्रेन डेवलपमेंट जो है उसको भी अच्छे से प्रमोट करना, तो ये चीज़ें पूरी थायरोक्सिन से रिलेटेड है। लेकिन थायरोक्सिन बनने के लिए डाइट में आयोडीन अच्छा चाहिए, और वो अगर नहीं है तो गोइटर बनेगा, और ये जो पूरी जो सिम्टम्स है, ऑल दीज आर द सिम्टम्स ऑफ गोइटर। ओके, सो दैट इज द पॉइंट, डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नंबर 12.
So select the answer which correctly matches the endocrine gland with the hormone its secret and its function deficiency. ठीक है. So let me see, it's everything running fine. Yes, till now at least everything is running fine. So question number 12. So matching select the answer which correctly matches the endocrine gland with its hormone. ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है. अभी हमें इसमें से करेक्ट मैच ढूंढना है. ठीक है, तो पहला कॉलम जो है वो है ग्लैंड का, दूसरे कॉलम में हार्मोन का नाम है, और तीसरे इसमें जो है फंक्शन या फिर डिफिशिएंसी सिम्टम है. पोस्टीरियर पिट्यूटरी कौन बनाता, क्या बनाता है? ग्रोथ हार्मोन. पोस्टीरियर पिट्यूटरी नहीं, गलत है. यहाँ पर क्या चाहिए था? एंटीरियर चाहिए था. थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन बनाता है, ठीक है. यहाँ पर थायरोक्सिन लैक ऑफ आयोडीन इन डाइट रिजल्ट इन वाइटर, ये भी ठीक है, ठीक ठाक लगता है. तीसरा कॉर्पस लूटेम टेस्टोस्टेरॉन बनाता है, नहीं, प्रोजेस्टेरॉन बनाता है. स्टिमुलेट अभी आगे की देखने की जरूरत ही नहीं है. और लास्ट का डी का क्या बोलता है? एंटीरियर पिट्यूटरी. एंटीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन बनाता है. एंटीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन नहीं, ये तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का है, तो यहीं पर ये गलत हो रहा है. सो द ओनली राइट आंसर इज ऑप्शन बी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एक्शन ऑफ इंसुलिन? तो इंसुलिन का एक्शन अभी यहाँ पे बोलना है. इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल. तो ये चीज़ हमें बहुत सिंपल से समझ में आ सकती है कि इंसुलिन क्या करता है. इंसुलिन की डिफिशिएंसी रहती है तो शुगर होती है, मतलब क्या होता है? ब्लड की ग्लूकोज बढ़ जाती है. अगर इंसुलिन कम होता है मतलब इंसुलिन का होना ब्लड के ग्लूकोज को कम करने के काम में आता है. तो यहाँ पर अगर ऑप्शन देखते हैं तो कितना इजी बन जाता है. तीनों ऑप्शन कह रहे हैं इंक्रीज करता है, लेकिन क्या करता है वो? डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल. ओके, सो इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोजन. ठीक है, तो इंसुलिन का काम क्या है फिर? डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल. काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था. कई बार ऐसे होते हैं कि ऑप्शन अगर मतलब हम ज़्यादा सिमिलर वाले देखते हैं और फिर उसमें ही ढूंढने लगते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन दिया जाता है. ओके, एक सरप्राइज के तौर पर. नेक्स्ट क्वेश्चन. नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज्ड बाय द सिंपैथेटिक फाइबर. ओके, नॉरएपिनेफ्रिन के बारे में स्टेटमेंट दिए हैं 4. पहला स्टेटमेंट है इट इज रिलीज बाय सिंपैथेटिक फाइबर. सेकेंड, रिलीज बाय पैरासिम्पैथेटिक. थर्ड, इंक्रीजेस हार्ट रेट. चौथा, डिक्रीजेस ब्लड प्रेशर. विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो ट्रू स्टेटमेंट हमें यहाँ पर पूछे. नॉरएपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन ये कैसे है? एड्रेनालिन भी बोलते हैं या फिर नॉर एड्रेनालिन. तो ये स्टिमुलेट करने वाले ये दो तौर पर काम में आते हैं. एक तो हार्मोन के तौर पर और दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे. अब जब न्यूरोट्रांसमीटर की बात हो रही है तो सिंपैथेटिक फाइबर को इसको क्रेडिट देना पड़ेगा, इजंट इट? क्योंकि अगर जब हार्मोन की बात करते हैं तो फिर हमें एड्रिनल ग्लैंड के पास जाना होगा. ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो सिंपैथेटिक फाइबर, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट कराने का, हार्ट रेट हो या फिर चाहे जो भी चीज़ें, उनको सबको बढ़ाने का काम करती है, ना कि शांत करने का, पैसिफाई करने का काम पैरासिम्पैथेटिक का है. तो पहला तो सही है. ठीक है, तो यहाँ पर अभी अगर ऑप्शन देखते हैं तो ये सी और डी तो कैंसिल हो गया. बचा कौन? 1 4 या 1 3, मतलब 2 को देखने की जरूरत भी नहीं अभी हमें. थर्ड क्या है? इंक्रीजेज द हार्ट रेट, यही तो सही है, 1 और 3. चौथा क्या बोलता है? डिक्रीज ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर बढ़ाने का काम करेगा. ये एक्साइटमेंट कराने वाले हार्मोन है, या फिर हार्मोन भी बोल सकते हैं, या फिर इनको आप जैसे मैंने अभी बताया था कि इनको न्यूरोट्रांसमीटर भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो हार्ट रेट बढ़ाने वाला ऑप्शन 1 और 3 माने सही ऑप्शन है सेकेंड. ओके, नॉट इवन, क्योंकि उसमें चौथा को ट्रू बोल रहा है, ब्लड प्रेशर कम करवाना, वो तो नहीं हो सकता. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली मैचेस द एंडोक्राइन ग्लैंड विद इट्स हार्मोन एंड इट्स फंक्शन. फिर एक बार एंडोक्राइन लिया, ग्लैंड दिया है, फिर हार्मोन दिया और फंक्शन. ओवरी सिक्रेट्स एफएसएच. गलत जवाब, बिल्कुल गलत. एफएसएच सिक्रेट करना काम एंटीरियर पिट्यूटरी का है, ना कि ओवरी का. ओ भगवान, ये क्यों रेड हो गया पूरा? ओके, सेकेंड, प्लेसेंटा. प्लेसेंटा के बारे में क्या है? क्या सिक्रेट करता है प्लेसेंटा? एस्ट्रोजन. प्लेसेंटा एस्ट्रोजन सिक्रेट करता है? नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट कर सकता है. एस्ट्रोजन तो कौन सिक्रेट करता है? फॉलिकल सिक्रेट करते हैं, ग्रैन्युलोसा सेल्स वगैरह. देन कॉर्पस लूटेम सिक्रेट एस्ट्रोजन नहीं, कॉर्पस लूटेम प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करता है.
लीडिंग सेल एंड्रोजन, एंड्रोजन माने टेस्टोस्टेरोन, इनिशिएट प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, ये चलेगा. सो द लास्ट वन इज द राइट थिंग. Okay, so option last is the answer. Next question number 16. Which one of the following pair of hormone are examples of those that can easily pass through the cell membrane of the target cell and bind to the receptor inside it? तो क्वेश्चन क्या बोलता है? Following pair of hormone are example of those that can easily pass through the cell membrane. तो ऐसे हार्मोन हमें ढूंढने हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन में से इजीली पास हो जाते हैं. ओके, टारगेट सेल के सेल मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच नहीं होते बल्कि उसके अंदर चले जाते हैं. एंड देन दे बाइंड टू रिसेप्टर इनसाइड द सेल. तो इसका जो डायग्राम है, ये चैप्टर का जो लास्ट का पेज है, या फिर एनसीईआरटी का भी अगर आप लास्ट का पेज बोल देते तो उसकी यहाँ पर डायग्राम बनने वाली है. तो एक चीज़ हमें समझनी होगी कि अगर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके हार्मोन अंदर जा सकता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो नेचर है वो फॉस्फोलिपिड से, लिपिड से बनने वाली है. तो समथिंग विच इज सोल्यूबल इन दिस मेम्ब्रेन दैट कैन ओनली क्रॉस, नॉट द पोलर थिंग. तो नॉन पोलर अगर किसी सब्सटेंस का नेचर है, चाहे वो हार्मोन ही न क्यों ना रहे, अगर वो उसका नॉन पोलर नेचर है, ऑयली नेचर है, तभी उसको क्रॉस कर सकता है. तो जिसका स्टेरॉइड नेचर है वही अब इसमें चलेगा. पेप्टाइड नेचर वाले या प्रोटीनेशियस नेचर वाले हार्मोन जो है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते अंदर जिनका रिसेप्टर है. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इंसुलिन ग्लूकागॉन देखते हैं तो दोनों प्रोटीनेशियस में चले जा रहे हैं. थायरोक्सिन इंसुलिन ये भी प्रोटीन वाले, सोमैटोस्टैटिन ये भी नहीं चलेगा. कॉर्टिजोल एंड टेस्टोस्टेरॉन, यस, कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड टेस्टोस्टेरॉन, इनके नाम में ही आप देख लेना, स्टेरॉन या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इजंट इट. तो इनके नाम में स्टेरॉइड है, मतलब ये ऑयली नेचर के, एंड दे कैन क्रॉस इजीली द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एंड व्हाई? बिकॉज देयर रिसेप्टर, एवरी हार्मोन रिक्वायर रिसेप्टर. हर एक हार्मोन को उसका फंक्शन दिखाने के लिए उसका जो रिसेप्टर है वो टारगेट सेल पे होना जरूरी होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द सोर्स ग्लैंड विद रिस्पेक्ट टू द हार्मोन एज वेल एज द फंक्शन. ओके, फिर वही चीज है. चलो यहाँ पर अभी हमें इंक का कलर चेंज करना पड़ेगा. तो एंटीरियर पिट्यूटरी, क्या वो ऑक्सीटोसिन सिक्रेट करती है? यहीं पर कलर जा रहा है. पोस्टीरियर पिट्यूटरी का है ना ऑक्सीटोसिन, क्या एंटीरियर पिट्यूटरी का है? एडीएच और ऑक्सीटोसिन दो ही तो आ रहे हैं हाइपोथैलेमस के पास जो वहाँ पर स्टोर होते हैं. तो ये पहले ही इधर ही गलत हो गया. दूसरा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी वैसोप्रेसिन, ये ठीक लगता है. एडीएच और ये चलेगा. अब आगे क्या है? स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द डिस्टल ट्यूब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन. तो नेफ्रॉन के डिस्टल पार्ट में यानी डीसीटी में क्या करता है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, माने पानी की बचत करने वाला. ये भी ठीक लगता है. ठीक है, अब ये जो चीज़ है, जब भी हम ऐसे क्वेश्चन देखते हैं ना तो थोड़ा सा गड़बड़ कम करनी है. जैसे हम कपड़े लेने को अगर चाहते हैं तो क्या करते हैं? एक पसंद आया तो वही उठा के लेकर के आते हैं क्या? नहीं. व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं? एक पसंद करते हैं, फिर और देखते हैं, और एक देखते हैं, 10-15 कपड़े, 20-25 कपड़े, अब डिपेंड्स चॉइस कितनी आपकी यूनिक है. फिर और एक उसको सेलेक्ट कर, तो 2-3 निकाल लेते हैं, फिर 2-3 को देखते बैठते हैं, ये लूँ ये लूँ ये लूँ ये लूँ, फिर दोनों में से एक फाइनल कर लेते हैं. वैसे ही ऑप्शन सही भी मिल जाता है तो एकदम गड़बड़ हड़बड़ नहीं करनी है, थोड़ा सा वेट एंड सी. कॉर्पस लुटियम एस्ट्रोजन सपोर्ट प्रेगनेंसी, क्या लगता है? कॉर्पस लुटियम एस्ट्रोजन सीक्रेट करता है? नहीं, प्रोजेस्टेरॉन. तो ये भी नहीं हो सकता. चौथा, थायराइड थायरोक्सिन चलेगा. रेगुलेट ब्लड कैल्शियम, थायराइड थायरोक्सिन तो ठीक है, लेकिन क्या ब्लड कैल्शियम करने वाला थायराइड का थायरोक्सिन है? नहीं. वो क्या है? थायरोकैल्सिटोनिन है. ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर गलत जा रहा है. ठीक है, इट शुड, थायरोक्सिन तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ये फंक्शन है उसके लिए थायरोक्सिन ठीक नहीं है. सो द राइट आंसर इज सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन. गिवन बिलो इज एन इनकम्प्लीट टेबल अबाउट सर्टेन हार्मोन, देयर सोर्स ग्लैंड एंड वन मेजर इफेक्ट in each on the body in human. Identify the correct option. तो यहाँ पर देखते हैं इसे क्या दिया है. ए, फिर सोर्स ग्लैंड में, फिर बी और सी हार्मोन में. तो ठीक है, एस्ट्रोजन कौन सीक्रेट करता है? यस, इट इज सीक्रेटेड बाय ओवरी. हु एल्स? ठीक है. दूसरा, फिर वो क्या कर रहा है? मेंटेनेंस. ठीक है. अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस, अभी ये चीज़ आपको याद ही रखनी होगी. बीटा सेल इंसुलिन और अल्फा सेल जो है वो ग्लूकागॉन सीक्रेट करते हैं, रेजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल. यस, तो यहाँ पर आ जाएगा ग्लूकागॉन. ओके. थर्ड ऑप्शन, एंटीरियर पिट्यूटरी, ये सीक्रेट कर रहा है सी हार्मोन. उसके तो कई सारे फंक्शन देखना होगा.
ओवर सिक्रेशन लीड्स टू वैगेंटीज, माने बहुत ज़्यादा हाइट बढ़ जाना, तो हाइट बढ़ाने वाला कौन सा है, ग्रोथ हार्मोन GH। तो A इक्वल्स टू ओवरी, B इक्वल्स टू ग्लूकागॉन, C इक्वल्स टू ग्रोथ हार्मोन। बहुत ज़्यादा ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, पहला ही ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट, द 24-hour diurnal rhythm of our body such as sleep wake cycle, ये क्वेश्चन अभी हमने शायद डिस्कस किया था। इट इज मेलाटोनिन, isn't it? मेलाटोनिन ये कौन है, pineal gland, isn't it? The part of hypothalamus. Hypothalamus is the part of diencephalon. Diencephalon is the part of forebrain, isn't it? Next, decrease in blood pressure volume will not cause the release of, बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन है। ब्लड प्रेशर या ब्लड वॉल्यूम जब कम होता है तो वो किस चीज को रिलीज नहीं करवाता है, नॉट कॉज द रिलीज ऑफ। अब ये फिर एक बार एक्सक्रीशन की तरफ क्वेश्चन जा रहा है। अब यही वही चीजें मुझे बार बार बतानी पड़ रही है, लेकिन भगवान करे आप लोगों को ये चीजें अच्छे से याद हो जाए। एक टीम है जिस टीम में कौन कौन है, एक है ADH, दूसरा है रेनिन, फिर तीसरा इसमें कौन है, ADH है, रेनिन है, और क्या कहते हैं आप उसे, एंजियोटेंसिन है, और चौथा है अल्डोस्टेरॉन। तो ये चार है कि जो क्या करते हैं, ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर दोनों बढ़ाने वाले हैं, चाहे वो ब्लड वॉल्यूम हो या ब्लड प्रेशर हो। अब इनको अपोज करने के लिए सिर्फ एक ही है, कौन है, ANF, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ठीक है, उसका काम क्या है, ANF का, उसका काम है ब्लड प्रेशर या ब्लड वॉल्यूम दोनों को कम करवाना। कैसे करवाता है ANF की काम, तो इसके लिए क्या करता है, वो यूरिन, बॉडी में से जो यूरिन जा रहा है उसमें कई सारा पानी और सोडियम आयन को वो गेट आउट करवा देता है। मगर इसका मतलब ये होता है कि अगर कई सारा पानी और सोडियम आयन अगर बॉडी में से बाहर जा रहे तो ऑटोमेटिकली यूरिन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, और ये यूरिन की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए जो पानी जा रहा है वो ब्लड में से जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली ब्लड का वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा, और वॉल्यूम कम हो जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ थी। अब देखते हैं डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। अब ये चीज समझनी होगी हमें कि ये जो चारों है ये कब आएंगे, कौन, ADH, रेनिन, एंजियोटेंसिन, अल्डोस्टेरॉन, ये कब आएंगे, ये क्या करते हैं, ब्लड वॉल्यूम ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। इसका मतलब क्या है, ये तब आएंगे जब ब्लड वॉल्यूम या ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहे तब आएंगे ये। ठीक है, और ब्लड प्रेशर या ब्लड वॉल्यूम कम करवाने के लिए ये आता है। मतलब ये कब आता होगा, जब ये बढ़ते होंगे। अगर ये बढ़ रहे तब क्या होगा, ANF आएगा और ये वाला काम करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम विल नॉट कॉज, क्या नहीं होगा, ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से। ब्लड प्रेशर अगर कम होता है तो ये होता है, क्या नहीं होता है, ANF का सिक्रेशन नहीं होता है, क्योंकि ये तो ANF का काम है। सो द राइट आंसर इज फर्स्ट इटसेल्फ, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन इनहिबिन। इनहिबिन के बारे में अभी हमें करेक्ट फंक्शन देखना है, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, सो दिस इज फ्रॉम 2016। क्या है ऑप्शंस, इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ LH एंड FSH। ठीक है, करेक्ट ढूंढना है हमें। तो LH और FSH एंड प्रोलैक्टिन। देखो इनहिबिन का काम क्या है, अभी हमने देखा था वो निगेटिव फीडबैक के तरीके से काम करता है, लेकिन क्या प्रोलैक्टिन का उसमें नाम आता है, नहीं। LH FSH लोग तो कुछ ठीक ठाक था, लेकिन प्रोलैक्टिन नहीं। सेकेंड चीज, प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रैन्युलोसा सेल इन ओवरी एंड इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ FSH। हालांकि FSH ज्यादा प्रोमिनेंट है, खाली LH भी उसका उतना मेजर रोल नहीं है। सो सेकेंड सीम्स टू बी फाइन। ओके, फिर भी देखते हैं, और एक कुछ चॉइस, कुछ वैरायटी और कुछ है क्या, इज प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रैन्युलोसा सेल इन ओवरी एंड इनहिबिट सिक्रेशन ऑफ LH। तो खाली LH का जो है उसका उतना मेजर रोल नहीं है इनहिबिन, मेजर रोल है FSH पे। लास्ट, प्रोड्यूस्ड बाय द नर्व सेल इन द, नो दिस इज रॉन्ग थिंग, एंड इनहिबिट सिक्रेशन ऑफ LH, नो, ये तो चौथा गलती है। सो द पॉइंट इज दैट इट इज ऑप्शन सेकेंड। ओके, सो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रैन्युलोसा सेल्स इन द ओवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22,
Here it is chemical signal that has both endocrine and neural role. न्यूरल रोल भी है और एंडोक्राइन मतलब हार्मोनल काम भी है. क्या हो सकता है? It must be epinephrine, isn't it? Something like this we have just discussed. Next question, what is the correct to say about hormone action in human? Okay, हार्मोन एक्शन के बारे में सही कौन सा है? ग्लूकागॉन इज सिक्रेटेड बाय बी सेल. नो, गलत है. बी सेल बीटा सेल चाहिए बेसिकली यहाँ पर, लेकिन ग्लूकागॉन जो है वो अल्फा सेल का है, तो ये तो नहीं होगा. सिक्रेशन ऑफ थाइमोसिन इज स्टिमुलेटेड विद एजिंग. देखो, थाइमोसिन का सिक्रेशन एजिंग के साथ बढ़ेगा नहीं. थाइमस का तो जो ग्लैंड है उसका तो एक स्पेशल फीचर ऐसा है कि ये उम्र के साथ इसकी साइज कम होते जाती है, तो ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. थर्ड जो है, इन फीमेल एफएसएच फर्स्ट बाइंड विद द स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन ओवरियन सेल मेम्ब्रेन. फीमेल एफएसएच बाइंड विद द स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन ओवरियन सेल मेम्ब्रेन. देखो, ओवरी के सेल मेम्ब्रेन पे फीमेल में का जो एफएसएच है वो जाके अटैच करता है. ठीक है, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन है, तो बिल्कुल उसको सरफेस के रिसेप्टर पे ही अटैच होना पड़ेगा, और वैसे भी नाम ही एफएसएच है तो वो ओवरी पे इफेक्ट करने वाला है. लास्ट ऑप्शन जो है, एफएसएच स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. अब देखो, एफएसएच पहले क्या करता है, ओवरी पे एक्ट करके उसके फॉलिकल को मैच्योर करा के ग्राफियन फॉलिकल बनाता है, वो एस्ट्रोजन भी सिक्रेट करवाता है, और आगे चल के इसी से जब कॉर्पस लुटेम बनेगा तो प्रोजेस्टेरॉन भी सिक्रेट करवा देता है. तो यहाँ पर एफएसएच डायरेक्टली इतना सारा काम करता है क्या, ये बात आती है. एफएसएच सिर्फ क्या कर सकता है, एस्ट्रोजन की जिम्मेवारी ले सकता है. प्रोजेस्टेरॉन जो है ये चीज़ गलत हो गई, ये बहुत आगे की चीज़ हो गई, ये एलएच के पास जाएगा रोल, ना कि एफएसएच के पास. तो करेक्ट क्या होगा? Okay, so the C, option C seems to be fine. In female, FSH first bind with the specific receptor. And why bind with the specific receptor on the cell membrane? Because it is proteinaceous. अगर steroid होता तो वो सेल के अंदर चला गया होगा. Next question, which of the following is an amino acid derived hormone? अमाइनो एसिड से बना हुआ ऐसा कौन सा हार्मोन है कि जो अमाइनो एसिड से बना हुआ? So options are estradiol, then ecdysone and epinephrine and estriol. Okay, so राइट आंसर जो कि अमाइनो एसिड से बना हुआ हार्मोन, दैट इज एपिनेफ्रीन. ओके, सो दिस वन इज द राइट आंसर, एपिनेफ्रीन. कौन से अमाइनो एसिड है? नाउ दीज आर एरोमेटिक अमाइनो एसिड कॉल्ड एज टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन. दीज आर टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन. आई होप यू नो बायोमोलिक्यूल में ये चीजें हुई है. ओके, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स है, तो इनसे बनता है ये एपिनेफ्रीन. ओके, प्लीज रिमेंबर. नेक्स्ट वन, 25, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इज इंसुलिन डिपेंडेंट. अब इंसुलिन पे डिपेंड करने वाले कौन से ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है? बेसिकली दीज आर द ट्रांसपोर्टर विच आर प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल. So the right answer here, now this is the point which is not given straightforward in NCERT, so you must know this thing. It is a GLUT4. It is the only transporter. अब ये चीज़ क्या है समझनी अगर आपको है, ये हो गई सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो यहाँ पर सेल डायरेक्टली ग्लूकोज को अंदर नहीं ले सकती. ठीक है, तो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कराने वाले यहाँ पर क्या होंगे, कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होंगे, मतलब एक गेट होगा या फिर चैनल होगा कि जो क्या करेगा, ग्लूकोज को अंदर लेगा. लेकिन एक पर्टिकुलर जो टाइप है ग्लूकोज को अंदर ट्रांसपोर्ट कराने वाले प्रोटीन का, वो चैनल का, जिसे हम GLUT4 बोलते हैं, ये गेट कब ओपन करा देता है? जब इसको आकर के इंसुलिन अटैच होता है, तो क्या हो जाता है, ये गेट ओपन हो जाता है, फिर इसके अंदर ग्लूकोज जा सकता है. ठीक है, सो इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इज GLUT4. अब बाकी की अगर हम बात करते हैं GLUT2 या फिर GLUT3 या फिर GLUT1 भी दिया हुआ है, तो इसमें का GLUT3 जो है वो फीटल ग्लूट है, मतलब फीटल स्टेज में इसे पाया जाता है. GLUT2 और GLUT1 एक ये टोटली इंसुलिन इंडिपेंडेंट है, इनका इंसुलिन के होने ना होने से कोई भी ताल्लुक नहीं है. ओके, दे वर्क इंडिपेंडेंट ऑफ इंसुलिन. नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग हार्मोन विद द रिस्पेक्टिव डिसीजेस. सेम कितनी बार ऐसे ही क्वेश्चन हम सॉल्व करते जा रहे हैं. सो इंसुलिन क्या हो सकता है इंसुलिन का? इट मस्ट बी डायबिटीज मेलिटस. थायरॉक्सिन, इट मस्ट बी गॉइटर.
कॉर्टिकॉइड्स और ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन तो इजी है एक्रोमिकली, और कॉर्टिकॉइड्स इट इज एडिशन डिसीज। ओके, तो इस हिसाब से अगर आंसर देखते हैं तो ए का 2 कहाँ पर है, तीनों में है, बी का जो है 4, अब किस में है, बी और सी में है, कॉर्टिकॉइड का 1, सी का 1, तो सही जवाब बन जाता है बी। ठीक है, अब ये क्या है, इंसुलिन की डिफिशियंसी, थायरोक्सिन की डिफिशियंसी, ठीक है, कॉर्टिकॉइड की डिफिशियंसी और ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस। ठीक है, तो इस तरीके के डिसीज दिए वाले। नाउ आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम नीट। हाउ डज स्टेरॉइड हार्मोन इन्फ्लुएंसेस द सेलुलर एक्टिविटीज। तो स्टेरॉइड हार्मोन सेलुलर एक्टिविटी पे कैसे परिणाम करते हैं, कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। बाइंडिंग ऑफ डीएनए एंड फॉर्मिंग अ जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स। तो स्टेरॉइड हार्मोन अंदर जाके डीएनए को अटैच हो जाते हैं और इस तरीके से जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। एक, एक्टिवेटिंग साइक्लिक एएमपी लोकेटेड ऑन द सेल मेम्ब्रेन। तीसरा, यूजिंग एक्वापोरिन चैनल एज सेकेंड मैसेंजर। चौथा, चेंजिंग द परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो यही चीज़ मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस की थी कि जब भी अगर हार्मोन को अंदर जाना है तो उसका नेचर कैसा चाहिए, स्टेरॉइड नेचर चाहिए, क्योंकि सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड है वो नॉन पोलर है, तो वो नॉन पोलर को ही अंदर जाने दे सकते हैं। तो हार्मोन स्टेरॉइड दिया हुआ है तो वो अंदर जाएगा, तो इसके लिए अंदर जाएगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के भी अंदर जाएगा, सो इट विल बाइंड टू द डीएनए एंड देन इट फॉर्म जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स। सो ए इज द राइट आंसर। ओके, अब ये बाकी के जो 3 है वो कब हो सकते हैं, जब अगर हार्मोन जो है वो सेल के सरफेस को अटैच हो रहा है, मतलब वो प्रोटीन से बना हुआ है। तो चलो, अभी ज़्यादा नहीं, 10-11 क्वेश्चन है एम्स के, सिर्फ वो हो जाते हैं तो आज का सेशन हम वाइंड अप कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच ग्लैंड इज कंसर्न विद द सॉल्ट इक्विलिब्रियम इन द बॉडी। तो कौन सी ग्लैंड है कि जो सॉल्ट का इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में काम आती है। अगर हम ऑप्शन पढ़ते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी या फिर पैनक्रियाज या एड्रिनल या फिर थायराइड। ठीक है, अब देखते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी में तो सॉल्ट के साथ खेलने वाला कोई भी नहीं है। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी के जो 5-6 हार्मोन है, 6 कह सकते हैं या 5 कह सकते हैं, जीटीएच को अगर 2 बोलते हैं तो 6 बोल सकते हैं। ठीक है, तो पैनक्रियाज के तो इंसुलिन, ग्लूकागॉन और वो स्टैटिन कुछ है, उनका भी कुछ रोल नहीं है सॉल्ट मेंटेन करने में, राइट। तीसरा है एड्रिनल। अब एड्रिनल का जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, ठीक है, वो सीक्रेट करता है अल्डोस्टेरॉन, और इसके बारे में काफ़ी चर्चा हो चुकी है, राइट फ्रॉम एक्सक्रीशन ऑस्मोरेगुलेशन, वहाँ से हम डिस्कस करते आ रहे दैट इट स्टिमुलेट रेनल एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, इजंट इट। सोडियम और वाटर को वो रिटेन कराता है, जिसको एएनएफ जिसको बाहर हकाल रहा है उसे एड्रिनल मेंटेन कर रहा है, उसको यूरिन में जाने नहीं देता है। तो इस तरीके से यहाँ पर सही जवाब क्या बन जाएगा, इट विल बी ADH, सॉरी दैट इज एड्रिनल, नॉट ADH। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स हैव एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। अब वही ऐसा ही क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था नीट में भी, तो एंटागोनिस्टिक यहाँ पर हमें ढूंढना है, वहाँ पर एंटागोनिस्टिक नहीं है ऐसा ढूंढना था, अब यहाँ पर एंटागोनिस्टिक ढूंढना है। ठीक है, क्या है, थायरोक्सिन, कैल्सिटोनिन, क्या है, क्या ऐसा कुछ, थायरोकैल्सिटोनिन और पैराथार्मोन का हो सकता है एंटागोनिस्टिक, ये थायरोक्सिन कैल्सिटोनिन नहीं। इंसुलिन, ग्लूकागॉन ये चलेगा, क्योंकि इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज कम कराता है, ग्लूकागॉन बढ़ाता है, सो दिस शुड बी द राइट आंसर। सेकंड, ग्रोथ हार्मोन, एपिनेफ्रिन नहीं, एपिनेफ्रिन ये सब बढ़ाने वाला स्टिमुलेटरी है, ग्रोथ हार्मोन हाइट वगैरह बढ़ाने वाला है, ये भी नहीं हो सकता। ACTH, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, नो, ये भी नहीं कहा जा सकता। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है क्या कह सकते हैं हम, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन है कि जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, और ACTH ये तो एंटीरियर पिट्यूटरी का है जो एड्रिनल को प्रमोट करता है उसके सिक्रेशन के लिए, तो ये भी अपोजिंग नहीं है। सो द ओनली थिंग इज इंसुलिन, ग्लूकागॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन डिस्क्राइबिंग द गोनाडोट्रोपिन एक्टिविटी इन अ नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल। करेक्ट ऑप्शन ऐसा ढूंढना है जो डिस्क्राइब कर रहा है गोनाडोट्रोपिन की एक्टिविटी को। ओके, अब गोनाडोट्रोपिन की एक्टिविटी, गोनाडोट्रोपिन कौन है, गोनाडोट्रोपिन GnRH बोल सकते हैं। नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल में हाई लेवल ऑफ FSH एंड LH स्टिमुलेट द थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। ठीक है, दूसरा, अब ये प्रेग्नेंट वीमेन की बात हो रही है, ये भी समझना होगा हमें, नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल। ओके, तो FSH LH के बारे में हम
प्रेग्नेंट फीमेल में बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाई लेवल ऑफ FSH एंड LH फैसिलिटेड इम्प्लांटेशन, LH अगर ज़्यादा है तो वो ओव्यूलेशन करवा देगा, ठीक है, लेकिन अगर वो प्रेग्नेंट है तो LH का वैसे तो डायरेक्ट नहीं होगा, और इम्प्लांटेशन की बात हो रही है। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, वो भी उस समय ज़्यादा नहीं रह सकता है, कि वरना फिर से मेंस्ट्रुएशन चालू होने के चांसेस रहेंगे। हाई लेवल ऑफ HCG स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये चीज़ कुछ ठीक ठाक लगती है कि HCG क्या, ह्यूमन कोराइनिक गोनेडोट्रोपिन, इजंट इट। तो जो फीटस या फिर एम्ब्रियो बन रहा है उसका जो कोराइन है, कोराइन से निकलने वाली ये गोनेडोट्रोपिन, सो दे स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। नाउ दीज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन देन दे मेंटेन द प्रेगनेंसी। चौथा ऑप्शन बोलता है हाई लेवल ऑफ HCG स्टिमुलेट थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, ये नहीं, एंडोमेट्रियम का थिकनेस मेंटेन कराने वाला प्रोजेस्टेरॉन है, विच इज देन सिक्रेटेड बाय दैट कॉर्पस लुटेयम, ओके, सो इट इज नॉट HCG, सो द राइट आंसर शुड बी ऑप्शन C, ओके। नेक्स्ट वन, which endocrine gland is called thorn of immunity, अभी थ्रॉन, so not thorn, my mistake, it is a throne माने राजमुकुट, ठीक है। तो इम्यूनिटी का राजमुकुट कौन हो सकता है, who else than thymus, because thymus is one who play very important role in the differentiation of T lymphocyte, which is responsible for cell mediated immunity, isn't it। मैंने ये चीज़ आपको शायद बोली भी थी, अमीर और समीर वाली, AMIR एंड CMIR, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स B लिम्फोसाइट, एंड T लिम्फोसाइट का जो है वो समीर, दैट इज CMIR, नॉट SAMIR, ये समीर CMIR, दैट इज सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, सो इट इज थाइमस। नेक्स्ट, क्योंकि बाकी के कोई ऑप्शन भी बिल्कुल भी उनका इम्यूनिटी में कुछ भी काम नहीं है, जैसे स्प्लीन, प्लीन, पीनियल या फिर एड्रिनल मेडुला। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन एक्ट्स अपॉन रेनल ट्यूब्यूल एंड ब्लड कैपिलरीज, तो ऐसे कौन से हार्मोन हैं जो रेनल ट्यूब्यूल और ब्लड कैपिलरी दोनों पर भी काम करते हैं, ठीक है। ग्लूकागॉन नहीं, अल्डोस्टेरॉन, अल्डोस्टेरॉन कहाँ पर करता है, अल्डोस्टेरॉन रेनल ट्यूब्यूल पर कर सकता है, क्या ब्लड कैपिलरीज पर हो सकता है, सोचना होगा, ओके। वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन माने ADH भी बोलते हैं इसे, तो वैसोप्रेसिन रेनल ट्यूब्यूल और ब्लड कैपिलरीज, नाम में ही इसके वैसो मतलब ब्लड वेसल, और उसको प्रेस करना माने कॉन्ट्रैक्ट करवाना, तो ब्लड कैपिलरीज पर काम कर सकता है। और रेनल ट्यूब्यूल डिस्टल पार्ट है, उसमें से वाटर रीअब्जॉर्ब करवा देता है, तो वैसोप्रेसिन मस्ट बी द आंसर, ओके। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नो, अगेन दे आर रिलेटेड विद द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म ऑफ जनरल बॉडी पार्ट्स और बॉडी सेल्स, okay, so it is the only ADH or vasopressin which has hold on this renal tubule as well as blood capillaries. Next question, adrenocorticoids are released from, adrenocorticoid कौन रिलीज करता है, सिंपलेस्ट क्वेश्चन आई थिंक, इतना सारा डिस्कशन करने के बाद ऐसे क्वेश्चन एकदम से सिंपल हो जाते हैं, ठीक है। oh God. अरे भगवान, सॉरी, आई प्रेस समथिंग रॉन्ग, पता नहीं मैंने क्या कर दिया, शायद कुछ भी तो हुआ नहीं है, बट आई एम नॉट वेरी श्योर, कुछ रॉन्ग, मैंने कई सारे शॉर्टकट बना करके रखे हैं जिनको मैक्रोज कहते हैं, ओके, शायद वो गलती से दब गया, ओके। एड्रिनोकॉर्टिकॉइड्स दे आर रिलीज फ्रॉम व्हाट, ऑप्शंस आर एड्रिनल कॉर्टेक्स, थायराइड, एड्रिनल मेडुला, गोनाड, सो आंसर इज क्वाइट ऑब्वियस, दैट इज एड्रिनल, यस इट इज एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल मेडुला जो है वो एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन वाला है, थायराइड का तो थायरोक्सिन और थायरोकैल्सिटोनिन है, गोनाड्स का तो बात ही नहीं आ सकती, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ हार्मोन एंड थायरोक्सिन इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ, इससे सिंपल क्वेश्चन हो सकता है क्या, इजंट इट अ बोन, ग्रोथ हार्मोन और थायरोक्सिन दोनों का बॉडी जनरल बॉडी ग्रोथ पर इफेक्ट है, तो मसल, RBC, नर्व सेल की तो बात ही नहीं आती। देन हार्मोन सिक्रेटेड बाय ए, इट शुड बी अल्फा सेल बेसिकली, तो अल्फा सेल अभी मैंने बोला था, दे सिक्रेट ग्लूकागॉन, सिंपलेस्ट है। नाइन्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कोऑर्डिनेट विद ईच अदर टू मेंटेन आइडियल ब्लड कैल्शियम लेवल, ये शायद नीट में हमने
अभी जब डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी। ब्लड कैल्शियम लेवल मेंटेन करने वाले कौन हैं, तो वो कौन है फिर? ऑप्शन ए थायरोकैल्सिटोनिन ग्लूकागॉन, ऑप्शन बी पैराथायरॉयड कॉर्टिजोल, ऑप्शन सी थायरोकैल्सिटोनिन थायरोक्सिन, और ऑप्शन लास्ट थायरोकैल्सिटोनिन और पैराथायरॉयड। सो दिस इज द लास्ट वन, दिस इज द राइट आंसर। थायरोकैल्सिटोनिन ये क्या कराता है? ब्लड कैल्शियम डिक्रीज कराता है। पैराथायरॉयड ब्लड कैल्शियम इंक्रीज कराता है। ओके, सो दिस इज द राइट आंसर। आइडियल ब्लड कैल्शियम लेवल मेंटेन करना। लास्ट टू क्वेश्चन, which among the following hormone initiate development of secondary sexual character in female? तो फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कंट्रोल की बात नहीं हो रही है। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, वरना एक अच्छा सवाल, अच्छा आने वाला मार्क जाने की नौबत आ सकती है। तो क्या पूछ रहा है वो? इनिशिएट की बात हो रही है। अगर कंट्रोल की बात होती तो फिर ये दूसरा कोई भी एस्ट्राडायोल या एस्ट्रायोल चल जाता था, लेकिन जब इनिशिएट की बात आ रही है तो हमें क्रेडिट देना होगा GnRH को, बिकॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ GnRH क्या होगा? ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स है अलग अलग स्टेजेस में, वो जाकर के मैच्योर फॉलिकल बनने लगेंगे। अब जब मैच्योर फॉलिकल बनने लगेंगे तो वो एस्ट्रोजन सीक्रेट करेंगे, और एस्ट्रोजन का होल्ड है किस पर? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो GnRH का होल्ड इनिशिएट कराने में है। ठीक है, अब ये एस्ट्राडायोल और एस्ट्रायोल बेसिकली जो एस्ट्रोजन है उसके तीन अलग अलग फॉर्म है। एक है एस्ट्राडायोल, दूसरा है एस्ट्रायोल, और एक है एस्ट्रॉन। ठीक है, तो एस्ट्रॉन लीस्ट पोटेंट है, बहुत ही कम पोटेंशियल है उसका एक्टिविटी का। एस्ट्राडायोल और एस्ट्रायोल ये दोनों, इनको एस्ट्रोजन करके ही जाना जाता है। प्रोजेस्टेरॉन इसका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर पर होल्ड नहीं है, ये प्रेगनेंसी मेंटेन कराने वाला है। सो द राइट आंसर विल बी GnRH। एंड लास्ट फॉर टुडेज सेशन, फेलियर ऑफ सिक्रेशन ऑफ हार्मोन वैसोप्रेसिन कॉजेज डायबिटीज मेलाइटस। क्या बोलते हैं? वैसोप्रेसिन माने ADH, तो ADH का कम हो जाना क्या डायबिटीज मेलाइटस बनाता है? नो, इट शुड बी इंसिपिडस, इजंट इट? डायबिटीज इंसिपिडस है। तो जब भी असर्शन ही गलत होता है तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, आंसर मस्ट बी डी। फिर भी देखो, पढ़ लेते हैं क्या है इसका रीजन। क्या है? वैसोप्रेसिन इंक्रीजेस वॉल्यूम ऑफ यूरिन। वैसोप्रेसिन यूरिन का वॉल्यूम कैसे बढ़ाएगा? वो तो वाटर एब्जॉर्ब करवाता है, तो यूरिन तो कम होना चाहिए, तो ये भी गलत है। सो आंसर इज ऑप्शन डी। आई होप यू नो असर्शन रीजन का क्या सीक्वेंस होता है। ओके, सो विद दिस वन वी आर एट द एंड ऑफ दिस सेशन, recorded session. It is almost 1 hour, 56 मिनट हो चुके हैं। ओके, आई एम नॉट श्योर यू आर एंजॉइंग, यू आर गेटिंग बेनिफिटेड। आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आप इन चीज़ों का यूज़ हो भी रहा है या नहीं, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जो पढ़ रहे हैं उनको तो यूज़ हो रहा है गारंटेड। कमेंट सेक्शन में आप जब भी लाइव देखते हो तो आप कुछ कमेंट सेक्शन में नहीं लिख सकते, but now you are, if you are now you are seeing this recording, so sure you can say something in the comments. You are welcome to say whatever. If you want to, even you want to suggest me something, you are welcome. अगर आपको कुछ मुझे चीज़ सजेस्ट करनी है कि सर ये ऐसा नहीं ऐसा कीजिए, you are welcome. Okay, so with this episode we are finished. मैं we कह रहा हूँ, not I, लेकिन कई स्टूडेंट्स के बारे में I should say I have finished. But in spite of that, I am saying we have finished 11th complete syllabus today. Now 16 more chapters from 12th standard remaining. Okay, so we'll deal with it in forthcoming 16 episodes, one chapter every day. Okay, this is our plan of work. So let us wind up this session. This is too much late tonight. Okay, so maybe you will watch this video in the morning. So what I can wish you now, have a nice day. Thank you very much, and please express yourself in the comment section. Okay, you can also like the video if you do like. Okay, thank you very much.